ہماری زندگیاں ختم ہو جائے لیکن درود کے فضائل ختم نہ ہو. لیکن یہ میرا عنوان نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بس چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کی محفل ہے، آقا کی میلاد کی محفل ہے. یارو کیا پتا مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے، ہم کو کیا پتا آقا کی شان کیا ہے، آقا کی عظمتیں کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت ہی مختصر سے وقت میں اپنے آقا کے میلاد کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. آپ کو پتا ہے اگر آپ دل کے کانوں سے سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا یا رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ اللہ. لوگ حضور کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں، نبی کے ذکر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ میں نے پڑھا، اللہ اللہ کیا پڑھا، نبی کا ذکر جو ہے وہ مثل مشک کے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ذکر ہے وہ مشک کی طریقے سے ہے. ارے جب کوئی بندہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی رب کی بارگاہ میں پیدل حج کرنے کے لیے نکل جائے تو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے. تو جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں آدم و عیسیٰ کو نبوت ملی ہے، اس کا ذکر ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہا؟ حضور کا جو ذکر ہے مثل مشک کی طریقے سے ہے. مشک کو آپ لیں، اس کو جتنے ہی گھسیں گے، جتنے ہی رگڑیں گے، اس میں سے زیادہ خوشبو نکلے گی. خوشبو بڑھتی جائے گی، آپ گھستے جائیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ اللہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. یا رسول اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بس اب اپنے نبی کی میلاد کی طرف آتے ہیں. وقت میں گنجائش نہیں کی اور بھی باتیں کی جائیں. آپ کو پتا ہے حضرت حضور کی امی جان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب وہ نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا، حضور کی امی جان کہتی ہے جب حضور کا نور میرے شکم میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، تو روزانہ میں اپنے گھر میں چراغ جلایا کرتی تھی، روزانہ اپنے گھر میں چراغ جلاتی تھی. لیکن آج جب وہ نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا تو آج مجھے چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے چراغ جلانے کی مجھے اپنے گھر میں. تو حضور کی امی جان سے پوچھا گیا آپ اپنے گھر میں چراغ کیوں نہیں جلاتی ہیں؟ تو حضور کی امی جان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں آج میں چراغ اس لیے نہیں جلاتی کہ اللہ اکبر میرے جسم سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور وہ نور کی کرنیں نکل کر کے میرے گھر کے در و دیوار کو روشن و درخشاں کر رہی ہیں. اس لیے جو ہے مجھے اپنے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اللہ اکبر. آج حضرت آمنہ کہتی ہیں اللہ میں حیران ہوں کہ آج جو ہے میں نے اپنے جسم پر خوشبو بھی نہیں لگائی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے میں ڈر رہی تھی کہیں کسی نے مجھ پر جادو تو نہیں کر دیا، کہیں کسی نے مجھ پر سحر تو نہیں کر دیا. ہم نے پوچھا ہے میرے نبی کی ماں آج ڈرتی کیوں تھی؟ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں آج جو ہے میں نے اپنے جسم پر کوئی خوشبو نہیں لگائی تھی، میں نے اپنے جسم پر کوئی عطر نہیں لگایا تھا، میں نے اپنے جسم پر کوئی مشک نہیں لگائی تھی، میں نے اپنے جسم کو خوشبو سے معطر نہیں کیا تھا. لیکن آج صبح سے میرے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، خوشبو کی لپیٹیں اٹھ کر کے میرے گھر کے در و دیوار پر مہکا رہی تھی. اللہ اکبر. جن راستوں سے میں گزر جاتی تھی وہ راستے خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے، جن راستے سے میں گزرتی تھی وہ راستے خوشبو سے مہک جایا کرتے تھے. اتنے پر ہی بس نہیں. حضور کی امی جان کہتی ہیں روزانہ جب میں پانی لینے کے لیے باہر جایا کرتی تھی تو پیروں میں میرے زمین پر جو کنکریاں پڑی ہوتی ہیں وہ کنکریاں میرے پیروں میں چپ جایا کرتی تھی، کنکر پتھر میرے پیروں میں چپ جایا کرتے تھے روزانہ. لیکن حضور کی امی کہتی ہیں ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا و مولا کی امی جان کہتی ہیں آپ نبی کی میلاد میں آ کر کے بیٹھے ہیں، آپ کے پیروں میں لگنے والی دھول ہماری سلاخوں پر اس لیے کہ آپ اس نبی کی میلاد میں آ کر کے بیٹھے جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا
महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर न करता, मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर न करता। अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता। हुजूर की अम्मी जान कहती है, आज जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो रोजाना जो पत्थर, रोजाना जो कंकर मेरे पैरों में चुभ जाया करते थे, आज जब बाहर निकलती हूँ जमीन पर पैर रखती हूँ, सब कुछ उसी तरीके से है। हाथ में पानी के लिए बर्तन भी लिया हुआ है, पाँव में चप्पल नहीं है, जमीन पर पैर रखती हूँ। घर से बाहर निकल करके रोजाना जो कंकरियां चुभती थी मेरे पंजों में, आज वो चुभती नहीं है। हम कहते हैं मेरे नबी की माँ, फिर वो कंकरियां चुभती क्यों नहीं है, क्या हुआ? हज़रत आमिना कहती है, आज वो कंकरियां मेरे पैरों के नीचे मिसले मोम के तरीके से नरम हो जाती है। अल्लाह अकबर। हज़रत आमिना कहती है, मैं हैरान थी। हम कहते हैं हैरान क्यों थी? इसलिए कि तुम्हारी गोद में वो आ गया है। आमिना तेरी अज़मतों पर कुर्बान, आमिना तेरी अज़मतों पर कुर्बान। अरे किसी का बेटा अल्लाह अकबर मौलवी बनता है, किसी का बेटा आलिम बनता है, किसी का बेटा डॉक्टर बनता है, किसी का बेटा इंजीनियर बनता है, किसी का बेटा मुदर्रिस बनता है, किसी का बेटा मुजद्दिद बनता है, किसी का बेटा मुहद्दिस बनता है, किसी का बेटा वली बनता है, किसी का बेटा नबी बनता है। लेकिन आमिना तेरी अज़मतों पर सलाम, तेरा बेटा सिर्फ नबी नहीं है बल्कि नबियों में नबी है, सैयदुल अंबिया है। उसकी निगाहें उठती है तो अल्लाह क़िबले को तब्दील फरमा देता है, उसका इशारा अप्रूव हो जाए, अल्लाह अकबर तो डूबा हुआ सूरज पलट जाता है, वो इशारा करे तो चांद के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। आमिना तेरी अज़मतों पर सलाम। सैयदा आमिना कहती है, फिर मैं घर से निकल करके बाहर जाती हूँ, मक्के की तमाम बकरियां, अभी नबी की विलादत नहीं हुई, कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं क्या या रसूल अल्लाह का जिक्र करते हो? हम कहते नादानो, पूरी कायनात में अल्लाह का इतना जिक्र नहीं होता जितना रसूलुल्लाह का जिक्र होता है। इसलिए कि अल्लाह का जिक्र मखलूक करती है और रसूल का जिक्र खालिक करता है। अल्लाह अकबर। और खालिक किस अंदाज में करता है? का जिक्र कह करके अपने महबूब की शान को बयान करता है। अल्लाह अकबर। महबूब की शान को अल्लाह तबारक व तआला इस शान से बयान करता है। आप एक मर्तबा जब हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह तबारक व तआला सुनते हैं ना, 10 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का नाम लेकर के उस पर दुरूद पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? फरिश्तों की महफिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का नाम लेकर के अपने महबूब की शान बयान करता है कि आज मेरे फला बंदे ने मेरे महबूब की शान को बयान किया, मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ाए। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह अपने महबूब की शान को और बढ़ा दे। हज़रत आमिना कहती है, मक्के की तमाम बकरियां मेरे पीछे पीछे और तमाम बकरियां कहती हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रत आमिना कहती है, मैं हैरान थी, अल्लाह इन बकरियों को कब से ज़बानें मिलने लगी, और बकरियों को ज़बानें मिली भी तो ये बोलती क्या है? ये किसको अल्लाह का रसूल कह करके किस पर सलातो सलाम की डालियां निछावर करती हैं तमाम बकरियां। हज़रत आमिना कहती है, तमाम बकरियां कहती हैं सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सारी बकरियां मेरे पीछे पीछे चल रही हैं। फिर हज़रत आमिना कहती है, और आगे चलती हूँ तो जो सूखा हुआ दरख्त मेरे पास से, मैं जिस सूखे हुए दरख्त के पास से गुजर जाती हूँ, वो सूखा हुआ दरख्त हरा भरा हो जाता है। अगर किसी दरख्त में फल नहीं है तो मैं उसके पास से गुजरती हूँ तो उन दरख्तों में फल निकल आते हैं। हज़रत आमिना कहती है, मैं जिन पत्थरों के पास से गुजरती हूँ वो पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे ईमान कहते हैं उन पर सलाम, जिनको उन पर दुरूद, जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर दुरूद, जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम, जिनको तहय्यत शजर की है। अल्लाह अकबर। हज़रत आमिना और आगे
चलती हैं। हज़रत आमना कहती हैं रोजाना मैं कुएं पर जाती थी, औरतों की कतार लगी हुई होती थी, लाइन लग करके पानी लेना पड़ता था। आज भी औरतों की लाइन लगी हुई है पानी लेने के लिए, मैं जाकर के उनके पीछे खड़ी हो जाती हूँ। जैसे ही मुझे औरतों ने देखा सारी औरतें पीछे हट जाती हैं और पीछे हट करके कहती हैं आमना पहले तू पानी भर ले, तेरे बाद में हम पानी भरेंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना कहती है मैं हैरान थी, अल्लाह आज हो क्या गया है, आज लोग मेरी इतनी ताज़ीम क्यों कर रहे हैं, आज लोग मेरी इतनी तौक़ीर क्यों कर रहे हैं, आज लोग मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तमाम बकरियां मक्के की मेरे पीछे पीछे, पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, दरख्त मुझे सलाम कर रहे हैं। हज़रत आमना कहती हैं तमाम बकरियां पीछे, तमाम वो औरतें जो थी लाइन लगा करके खड़ी हुई थी कुएं के पास, सामने से हट जाती हैं, कहती हैं आमना पहले तू पानी भर ले, तेरे बाद में पानी भरेंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना कुएं के करीब आती हैं, हुजूर की अम्मी जान हुजूर का मिलाद बयान करती है। हम में से और आप में से अगर किसी की माँ अपने बच्चे की तारीफ करे, अपने बच्चे की तारीफ करती हुई एक माँ थकती नहीं है। हम कहते हैं कयामत आ जाए लेकिन अपने एक माँ अपने बेटे की शान में कोई बेअदबी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने बेटे की फजीलतों को बयान करती रहेगी। और बेटे भी कैसे, हम जैसे निकम्मे। तो बताओ हमारी माँ हमारी तारीफ करते हुए नहीं थकती, उस नबी की माँ जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा ही बेअद किया हो। अल्लाह अकबर। हुजूर की अम्मी जान हुजूर का मिलाद बयान कर रही है। हुजूर की अम्मी जान कहती है, हज़रत आमना कहती है, वो तमाम औरतें पीछे हट जाती, कहती है आमना पहले तू पानी भर ले। हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा आती हैं कुएं के करीब में, कहती है कुएं से रोजाना पानी निकालते थे तो रस्सी में कुछ बर्तन रस्सी में बांध करके उसमें से पानी निकाला करते थे, लेकिन आज जैसे ही मैं कुएं में देखती हूँ तो कुएं का पानी जो है कुएं की तह में पहुंच चुका था, पानी कुएं की तह में था। मैंने जैसे ही देखा अल्लाह अकबर, पानी एकदम नीचे जा चुका था। हज़रत आमना कहती है मैंने जैसे ही कुएं के अंदर झांक करके देखा, जब झांक करके देखा अल्लाह अल्लाह तो मेरी पेशानी से एक नूर चमका। हज़रत आमना कहती है मेरी पेशानी से एक नूर चमका, एक लाइट निकली और वो लाइट निकल करके, वो नूर की किरण निकल करके कुएं की तह में जो पानी था उस पानी पर जा करके पड़ी। जैसे ही वो नूर की किरण उस पानी पर जाकर के पड़ी, पानी का कुएं का जो पानी था उबल करके ऊपर आ गया, पानी उबल करके ऊपर आया। हमने तो पानी भरा और साथ वाली तमाम औरतों ने पानी भर लिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की मिलाद है। वक्त में अगर गुंजाइश हो तो और भी बोला जाए लेकिन वक्त की किल्लत है। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। बताओ वो नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा खड़े होकर के अपनी कौम को, अपने उम्मतियों को वाज़ नसीहत कर रहे थे। अपनी उम्मत में जो है लोगों को बातें बता रहे थे, दीन और इस्लाम की बातें बता रहे थे। एक बुढ़िया खड़ी होगी, बुढ़िया उठ करके खड़ी होकर के कहने लगी, ओ ईसा कितना अच्छा है तू और कितनी अच्छी है तेरी माँ मरियम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने खिताब को वहीं रोक देते हैं, अपनी तकरीर को बंद करके कहते हैं, ओ माई तुझे ये कहने का हक तो है कि मैं अच्छा हूँ, तू ये भी कह सकती है कि मेरी माँ अच्छी है, लेकिन ये कहने का तुझे हक नहीं। उस बूढ़ी औरत ने ये भी कहा था ना, ईसा कितना अच्छा है तू, तुझसे अच्छा कौन हो सकता है, कितनी अच्छी है तेरी माँ से अच्छी कौन औरत हो सकती है। तो हज़रत ईसा ने अपने वाज को रोक करके कहा, अपनी तकरीर को बंद करके कहा, ओ माई तू मुझे अच्छा कह सकती है लेकिन ये नहीं कह सकती कि तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये भी कह सकती है कि तेरी माँ अच्छी है, यकीनन मेरी माँ अच्छी है, लेकिन तुझे ये कहने का हक नहीं है कि तेरी माँ से अच्छी कोई माँ नहीं हो सकती, इसलिए कि अभी मेरी नबूवत का सितारा चमक रहा है। लेकिन याद रख मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक नबी आएगा। नबी हुजूर की उम्मत में आने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते रहे। 12 नबियों ने दुआएं की कि अल्लाह अपने महबूब का उम्मती बना करके हमें भेज दे।
बताओ, नबी दुआएं करते रहे। हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरफ अता किया कि अपने महबूब की उम्मत में हमको पैदा किया, और इतनी नेमतें देने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कोई एहसान नहीं जताया, लेकिन महबूब को देख करके हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया। उस एहसान को कुरान अज़ीम में जताया भी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवाना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सुन, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी एक माँ होगी जिसका नाम आमिना होगा, आमिना। तो ये तो कह सकती है मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बहुत अच्छा, लेकिन मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। सुन, मेरे बाद जो नबी आएगा ना, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा होगा, और मैं अल्लाह का नबी ईसा, अगर मुझे उस नबी के पांव की नालैन का तस्मा बांधने का शरफ हासिल हो जाए तो ये अपने मुकद्दर की मेराज समझता हूँ। बताओ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस तस्मा बांधने का शरफ मुझे हासिल हो जाए तो उसके अपने मुकद्दर की मेराज समझूंगा। हम उस नबी की मिलाद में बैठे हुए हैं और हमें बैठने का सलीका भी नहीं मालूम है। इतनी देर से लोग नाच पढ़ रहे हैं, कोई बोल रहा है, आप लोगों के अल्लाहु अकबर, आप लोगों के दिलों में कोई बात करने के लिए, आप लोग कोई बात कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पर पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 1 साल पहले भी हम लोग आए थे, लेकिन आप लोगों की समातें सही नहीं थी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जब भी कोई नबी का जिक्र हो, आपको पता है महफिलों की शान क्या है। मैं बारहा कहता हूँ, आप तो यहाँ पर बैठे हुए महफिलों में, रास्ते से कोई गुजर रहा है बंदा, उसको पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, और वो आकर के खड़ा हो गया, कंफ्यूज है यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मजमा क्यों है, भीड़ क्यों इकट्ठा है। उसी कंफ्यूजन में आकर के यहाँ पर खड़ा हो गया। खड़ा हुआ तो उसने देखा कि हुजूर का जिक्र चल रहा है, खड़ा रहा। फरिश्ते आए, नामे अमाल में लोगों की नेकियां लिखने लगे, बैठने वालों की तो लिखी जा रही है। अब वो जो बंदा खड़ा था, रास्ता गुजर रहा था, आकर के खड़ा हो गया, उसके बारे में फरिश्तों को कंफ्यूजन है। अल्लाह, सबने तो तेरे महबूब की महफिल में शिरकत की, सबके नामे अमाल में नेकियां लिख ली गई मौला, लेकिन ये बंदा रास्ता गुजर रहा था, ये इस नियत से नहीं आया कि महबूब की मिलाद को सुनेंगे, महबूब के जिक्र को सुनेंगे। अल्लाह, ये तो रास्ता गुजर रहा था, रास्ता गुजरते भी यहाँ पर आ गया, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, रास्ता गुजर रहा था, आया, आकर के रुका, कहा मेरे महबूब की महफिल में रुका ना, महबूब की महफिल में रुका तो जाओ, महबूब के सदके में हमने इसकी भी मग़फ़िरत कर दी। बताओ, ये महबूब की शान है। तो आप लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अपने दिल के कानों से सुने, फिर देखें आखिरत भी संवरेगी, दुनिया भी संवरेगी। और आपको पता है हुज़ूर की मिलाद की शान क्या है। बस आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जो लोग कहते हैं ना हुज़ूर के मिलाद पे क्या ये लाइटिंग कर रहे हो, ये क्या ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, इतने जलसे जुलूस कर रहे हो हुज़ूर की मिलाद पर, इतने में एक गरीब बेटी की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। हम उनको कहना चाहता, नादानो, तुमको मालूम नहीं अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया की तहक़ीक़, जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाहु अकबर, वो अबू बकर सिद्दीक़ आज़म होता। वो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिसने नबी के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, 1 दिरहम जिसने नबी के मिलाद पर खर्च किया, वो क़यामत के दिन मेरे साथ उठाया जाएगा। बताओ, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, उमर फारूक आज़म कहते हैं, जिसने नबी के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, जिसने नबी के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। आपको पता है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की, हम लोगों के पास अदब ही नहीं है, हम लोगों के पास हुज़ूर के मिलाद की ताज़ीम ही नहीं है। मिलाद की महफिल में बैठे हुए सरों पर टोपियां नहीं है, टोपियां तक तो ठीक था, मिलाद में बैठ करके पेशगोई कर रहे हैं, पेश बातें कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर,
नबी के मिलाद में बैठे हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की उसने जो है अल्लाह तबारक व तआला उसको शरफ ये बख्शेगा कि उसने जिसने ताज़ीम की गोया कि वो बद्र हुनैन की जंग में शरीक हुआ। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहते हैं जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मिलाद की ताज़ीम की दुनिया से मरेगा तो ईमान के साथ मरेगा और बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आओ अपने नबी के मिलाद को निहायत अदब व ताज़ीम के साथ बैठकर किसने वक्त की किल्लत है वरना और भी बोलने की सआदत हासिल की जाती। बस इसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हो तो अपने रब्बे कदीर की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। जिंदगी खत्म हुई और कलम टूट गई, तेरे औसाफ का बात भी पूरा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बातें आप हज़रात ने समाप्त कर ली। अब आइए फिर से सुन्नत हसन को अमली जामा पहनाने के लिए